ٹائم لیس پوڈ کاسٹ پریزنس سعادت حسن منٹو کا افسانہ 1919 کی ایک بات، جسے پروڈیوس کیا ہے ٹائم لیس امرتسر نے اور آواز ہے بھویا کشیپ کی۔ یہ بات سن 1919 کی ہے، جب رولٹ ایکٹ کے خلاف سارے پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہی تھی۔ میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں۔ سر مائیکل آڈوائر نے ڈیفینس آف انڈیا رولز کے ماتحت گاندھی جی کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیا تھا۔ وہ ادھر آ رہے تھے کہ پلوال کے مقام پر ان کو روک لیا گیا اور گرفتار کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی جان، اگر انگریز یہ غلطی نہ کرتا تو جلیانوالہ باغ کا حادثہ اس کی حکمرانی کی سیاہ تاریخ میں ایسے خونی ورق کا اضافہ کبھی نہ کرتا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب کے دل میں گاندھی جی کی بے حد عزت تھی۔ سب انہیں مہاتما مانتے تھے۔ جب ان کی گرفتاری کی خبر لاہور پہنچی تو سارا کاروبار ایک دم بند ہو گیا۔ لاہور سے امرتسر والوں کو معلوم ہو گیا اور یوں چٹکیوں میں سارے شہر میں مکمل ہڑتال ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کی شام کو ڈاکٹر ستپال اور ڈاکٹر کچلو کی جلا وطنی کے احکام ڈپٹی کمشنر کو مل گئے تھے۔ وہ ان کی تعمیل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے خیال کے مطابق امرتسر میں کسی ہیجان خیز بات کا خطرہ نہیں تھا۔ لوگ پرامن طریقے سے جلسے کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں بھائی صاحب۔ 9 کو رام نومی تھی، جلوس نکلا، مگر مجال ہے کہ کسی حکام کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہو۔ لیکن بھائی جان، یہ سر مائیکل عجب اوندھی کھوپڑی کا انسان تھا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کی ایک نہ سنی۔ اس پر بس یہی خوف سوار تھا کہ یہ لیڈر مہاتما گاندھی کے اشارے پر انگریزوں کا تختہ الٹنے کے در پہ ہیں، اور جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جلسے منعقد ہوتے ہیں ان کے پس پردہ یہی سازش کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستپال کی جلا وطنی کی خبر آنن فانن شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دل ہر شخص کا مقدر تھا، ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ لیکن بھائی جان، جوش بہت زیادہ تھا۔ کاروبار بند تھے، شہر قبرستان بنا ہوا تھا، پر اس قبرستان کی خاموشی میں بھی ایک شور تھا۔ جب ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستپال کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے کہ سب مل کر ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس جائیں گے اور اپنے محبوب لیڈروں کی جلا وطنی کے حکم کو رد کرانے کی درخواست کریں گے۔ مگر وہ زمانہ بھائی جان درخواستیں سننے کا نہیں تھا۔ سر مائیکل جیسا فرعون حاکم اعلیٰ تھا، اس نے درخواست سننا تو دور، لوگوں کے اس طرح جمع ہونے کو بھی غیر قانونی قرار کر دیا۔ امرتسر، وہ امرتسر جو کبھی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کے سینے پر جلیانوالہ باغ جیسا قابل فخر زخم تھا، آج کس حالات میں ہے؟ اس مقدس شہر میں جو کچھ آج سے 5 برس پہلے ہوا، اس کے ذمہ دار بھی انگریز ہیں۔ ہوگا بھائی جان، سچ پوچھئے تو اس لہو میں جو وہاں بہا ہے ہمارے اپنے ہی ہاتھ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بنگلہ سول لائنز میں تھا۔ ہر بڑا افسر اور ہر بڑا ٹوڈی شہر کے اسی الگ تھلگ حصے میں رہتا تھا۔ آپ نے امرتسر دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر اور سول لائنز کو ملانے والا ایک پل ہے، جس پر سے گزر کر ہم ٹھنڈی سڑک پر پہنچتے ہیں، جہاں حاکموں نے اپنے لیے زمین پر جنت بنائی ہوئی ہے۔ ہجوم جب حال دروازے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پل پر گھڑ سوار گھوڑوں کا پہرا ہے۔ ہجوم بالکل نہ رکا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ بھائی جان، میں اس ہجوم میں شامل تھا۔ جوش کتنا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب نہتے تھے۔ کسی کے پاس ایک معمولی چھڑی تک نہیں تھی۔ اصل میں ہجوم تو صرف اس غرض سے نکلا تھا کہ اجتماعی طور پر اپنی آواز حاکم شہر تک پہنچائیں اور اس سے درخواست کریں کہ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستپال کو بغیر شرط رہا کر دیا جائے۔ ہجوم پل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ قریب پہنچے تو گھڑ سوار گوروں نے فائر شروع کر دیے۔ اس سے بھگدڑ مچ گئی۔ گورے گنتی میں صرف 20-25 تھے اور ہجوم سینکڑوں پر مشتمل تھا۔ لیکن بھائی جان، گولی کی دہشت بہت ہوتی ہے۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ اللہ اللہ، لوگ گولیوں سے گھائل ہوئے اور کچھ بھگدڑ میں زخمی ہوئے۔ دائیں ہاتھ کو گندا نالا تھا، دھکا لگا تو میں اس میں گر پڑا۔
गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा कि हुजूम तितर बितर हो चुका था। वो लोग जो जख्मी हो चुके थे सड़क पर पड़े थे और पुल पर घुड़सवार घोड़े खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतन याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालात किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होशो हवास पूरी तरह सलामत नहीं थी। गंदे नाले में गिरते वक्त तो कतन मुझे होश नहीं था, लेकिन जब मैं नाले से बाहर निकला तो जो हादसा हो चुका था उसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे हों। मैं गंदा नाला अबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर हाल दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे थे। घड़ियाल का शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मलिका का बुत तोड़े। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाते हैं। तीसरे ने कहा, अरे नहीं, सारे बैंकों को आग लगाते हैं। चौथे ने उन सबको रोका और कहा, नहीं नहीं, ठहरो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ करना ही है तो चलो पुल पर चलकर उन गोरों को मारे। मैंने चौथे नौजवान को पहचान लिया था। भाईजान, वो थैला कंजर था। उसका नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर वो थैला कंजर के नाम से मशहूर था इसलिए कि वो एक तवाइफ के वतन से था। बड़ा आवारा गर्द था। छोटी उम्र में ही उसको जुए और शराब नोशी की लत पड़ गई थी। उसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की हसीन तरीन तवाइफें थीं। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी दूर दूर से आते थे। दोनों अपने भाई की करतूतों से बहुत नाला और नाराज थीं। शहर में मशहूर था कि दोनों ने एक तरह से अपने भाई को बेदखल कर दिया है। फिर भी वो किसी न किसी हीले से अपनी जरूरियात के लिए अपनी बहनों से कुछ न कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे वो बहुत खुशपोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। हाजिर जवाबी और लतीफा गोई उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई थी। मिरासियों और भांडों के घटियापन से वो बहुत दूर रहता था। लंबा कद, भरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाक नक्शे का भी वो खासा था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात ना सुनी और मलिका के बुत की तरफ चलने लगी। उसने फिर उनसे कहा, मैं कहता हूँ मत जाया करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ, चलो उन गोरों को मारते हैं जिन्होंने हमारे बेकसूर लोगों को जख्मी भी किया और उनकी जानें भी ली। खुदा की कसम, हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, चलो। कुछ नौजवान मलिका की बुत की तरफ जा चुके थे और जो रह गए थे थैला की बात सुनकर रुक गए। थैला जब पुल की तरफ बढ़ रहा था तो वो भी पीछे चलने लगी। मैंने सोचा भाईजान की माओ के ये लाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फव्वारे के पास दुबका खड़ा रहा। मैंने वहीं से थैले को आवाज दी और कहा, अरे मत जाओ यार, क्यों अपनी और उनकी जान के पीछे पड़े हो। थैले ने मेरी बात सुनकर एक अजीब सा कहकहा बुलंद किया। थैला सिर्फ ये बताने चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं है। फिर वो अपने पीछे आते हुए नौजवानों से मुखातिब हुआ, अगर तुम लोग डरते हो तो वापस जा सकते हो। भाईजान, ऐसे मौकों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते हैं, और फिर वो भी उस वक्त जब एक जोशीला नौजवान अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ा चला जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके पीछे पीछे बढ़ते हुए नौजवानों ने भी कदम तेज कर दिए। हाल दरवाजे से पुल तक का फासला कुछ ज्यादा नहीं था, होगा कोई 60-70 गज के करीब। थैला सबसे आगे था। जहाँ से पुल का 2 रास्ता जंगला शुरू होता है, वहाँ से 15-20 कदम के फासले पर उधर 2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। यकायक थैले ने नारा लगाया कि एकदम से उधर से फायर हुआ। मेरी आंखें आप से आप मिच गई। जाने मैंने क्यों यकायक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर ले ले जस्ट फॉर। यकायक थैले ने नारा लगाया कि एकदम से उधर से फायर हुआ। मेरी आंखें आप से आप मिच गई। जाने मैंने क्यों समझा कि वो गिर पड़ा है। इस एहसास के साथ ही मैंने अपनी आंखें मुश्किल से खोली। मैंने देखा कि वो पीछे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा है। फायर होते ही बाकी नौजवान भाग उठे और वो चिल्ला रहा था, अरे भागो मत, भागो नहीं, चले आओ, वापस आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। उसने अपनी पीठ पर हाथ फेरा और पलटकर गोरों की तरफ देखा। जब उसकी पीठ मेरी तरफ थी तो मैंने देखा
कि उसकी सफेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। वो जख्मी शेर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और पहले घुड़सवार गोरे पर लपका। इतने में एक और फायर हुआ और पलक झपकते ही न जाने क्या हुआ, एक घोड़े की पीठ खाली थी। एक गोरा जमीन पर था और थैला उसकी छाती पर चढ़कर बैठा था। दूसरे घुड़सवार गोरे ने, जो करीब ही था और जख्मी थैला की फुर्ती और लपक से बौखला गया था, अपने बिदकते हुए घोड़े को रोका और फिर धड़ाधड़ फायर शुरू कर दी। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहीं फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में हूँ। चंद जान पहचान के लोग मुझे फव्वारे के पास से उठा लाए थे। उनकी ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि पुल पर गोलियां चलने की खबर से शहर में बिखरा हुआ हुजूम एक जगह जमा हो गया है और गुस्से में आ गया है। इसी गुस्से का नतीजा ये निकला कि टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगा दी गई और 5-6 गोरे मार दिए गए। खूब लूट मची। लूट खसूट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था, लेकिन 5 या 6 गोरे भी हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग का खूनी हादसा रोनुमा हुआ। खैर, मैं तो बात कर रहा था थैले कंजर की। भाईजान, आंखों देखी आपको बता चुका हूँ, बेऐब जात खुदा की। थैले मरहूम में चारों ऐब शरी थे। वो एक पेशेवर तवाइफ के बतन से था, मगर बड़ा जियाला था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ भाईजान, खुदा की मार पड़े उस पर, उस घुड़सवार पर, कि पहली गोली भी उसकी थैले को लगी थी। पर जोश की हालात में वे महसूस तक न कर सका कि उसकी छाती में गरम गरम सीसा उतर चुका है। वो तो पहले फायर की आवाज सुनते ही गर्दन घुमाकर भागते हुए नौजवानों को पुकारने लगा था। दूसरी गोली उसकी पीठ पर लगी थी और तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा तो नहीं था, पर सुना है कि जब उसका मुड़ता जिस्म गोरे से अलग किया गया तो उसके दोनों हाथ गोरे की गर्दन से इस बुरी तरह पेबस थे कि बहुत मुश्किल से अलहदा किए जा सके। गोरा जहन्नुम वासन हो चुका था। दूसरे रोज जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों को सुपुर्द कर दी गई तो लाश गोलियों से छलनी हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि जब उस दूसरे घुड़सवार गोरे ने थैले पर अपना पूरा पिस्तौल खाली किया था, उससे पहले ही थैले की रूह निकल चुकी थी। उस शैतान के बच्चे ने सिर्फ थैले के मुर्दा जिस्म पर जान मारी ही थी। कहते हैं जब मोहल्ले में थैले की लाश पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कीमा कीमा लाश देखकर सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गई। जब थैले का जनाजा उठा तो दोनों ने ऐसे बैन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा है कि फ्रांस के इनकलाब में पहली गोली वहां के एक टकियाई रंडी को लगी थी। मरहूम थैला यानी मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जद्दोजहद में पहली गोली जो थैले को लगी थी, वो गोली 10वीं थी या 50वीं, इसके मुतालिक किसी ने भी तहकीक नहीं की। शायद इसलिए कि समाज में इस गरीब का कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब के इस खूनी गुसल में नहाने वालों की फहरिस्त में थैला कंजर का नामो निशान तक भी ना होगा। और ये भी कौन जानता है कि ऐसी कोई फहरिस्त कभी बनाई भी गई थी। सख्त हंगामी दिन थे। फौजी हुकूमत का दौरा था। वो देव जिसे मार्शल लॉ कहते थे, शहर के गली गली कूचे कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में थैले गरीब को यूं जल्दी दफना दिया गया जैसे उसकी मौत उसके सोगवार अजीजों का एक संगीन जुर्म हो और जिसके निशानात वो मिटा देना चाहते हों। बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। और ये कहकर मेरा हमसफर पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दनदनाती हुई चली जा रही थी। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पटड़ियों की खटाखट ने ये कहना शुरू कर दिया कि थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। जैसे इस मरने और दफनाने के दरमियान कोई फासला नहीं था, जैसे वो इधर मरा और उधर दफना दिया गया।
पटरियों की खटाखट के साथ पटरियों की इन अल्फाज की हमाहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आरी लगी कि मुझे अपने दिमाग से पटरियों और अल्फाज दोनों को जुदा करना पड़ा। मैंने अपने हमसफर से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे? चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। जी हाँ, इस दास्तां का एक दर्दनाक हिस्सा भी बाकी है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि थैले की 2 बहनें थीं, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थीं। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नक्श, गलाफी आँखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खां साहब फतेह अली खां से तालीम लेती रही थी। दूसरी अलमास थी। उसके गले में सुर नहीं था, लेकिन बतावे में अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि उसका अंग अंग बोल रहा है। हर भाव में एक घात होती थी। आंखों में वो जादू था जो हर एक के सर चढ़कर बोलता था। मेरे हमसफर ने थैले की दोनों बहनों की तारीफ बयान करने में जरूरत से ज्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब ना समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद उस लंबे चक्कर से निकला और दास्तान के दर्दनाक हिस्से की तरफ आया। किस्सा ये है भाईजान कि इन आफत की परकाला दोनों बहनों के हुस्नो जमाल का जिक्र किसी खुशामदी टोड़ी ने गोरे फौजी अफसरों से कर दिया। जो 5-6 गोरे हलाक कर दिए गए थे, उनमें एक मेम भी थी। क्या नाम था उस चुड़ैल का? हाँ, मिस शेरोड। तो गोरे फौजी अफसरों ने ये तय किया कि थैले की दोनों बहनों को बुलवाया जाए और जी भरकर इंतकाम लिया जाए। आप समझ रहे हैं ना भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हमसफर ने एक आह भरी। ऐसे नाजुक मामले में तवाइफे और कस्बियां भी अपनी माँ बहनें होती हैं, मगर भाईजान ये मुल्क अपनी इज्जतों नामूस को मेरा ख्याल है पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार का ऑर्डर मिला तो वो फौरन तैयार हो गया। वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब लोगों ने दोनों बहनों को याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी अभी खुशक भी नहीं हुई थी। अल्लाह को प्यारा हुए उस गरीब को सिर्फ अभी 2 दिन हुए थे कि दोनों बहनों को ये हाजिरी का हुक्म सादर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अजियत का इससे बढ़कर पुरअजियत तरीका क्या हो सकता है? जुल्म और मजाक की ऐसी मिसाल मेरा ख्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी ना आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुखातिब वो मुझसे था। मैंने कहा, हो सकती है। जी हाँ, थैला आखिर उनका भाई था। उसने किसी जुए खाने की लड़ाई भिड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पीकर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। उसने वतन की राह में बड़े बहादुर नामा तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी और शमशाद और अलमास उसी माँ की बेटियां थी, और वो थैले की बहनें पहले थी, तवाइफे बाद में थी। थैले की लाश देखकर वो बेहोश हो गई थी, और जब थैले का जनाजा उठा था तो उन्होंने ऐसे बैन किए कि सुनकर आदमी लहू रोने लगा था। मैंने पूछा, तो क्या वो गई? मेरे हमसफर ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद अफसुर्दगी के साथ दिया। जी हाँ गई, खूब सज बन कर गई। एकदम उसकी अफसुर्दगी तीखापन इख्तियार कर गई। खूब 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गई। कहते हैं खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जौहर दिखाए। खूब चमकीले पोशाक पहनकर वो ऐसे तैयार हुई कि मानो परियां हों। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती गाती रही, और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। फिर मेरा हमसफर कुछ देर खामोश रहा और उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा। पहियों और पटड़ियों की आहनी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 लफ्ज नाच रहे थे, बर्खास्त हुई, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में उसके आखिरी 2 लफ्जों को उस गड़गड़ाहट से नोच कर आलाहिदा करते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ? पीछे भागते हुए दरख्तों और खंभों से नजरें हटाकर उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। फिर उन्होंने अपनी चमकीली पोशाक नोच डाली और अलफ नंगी हो गई और कहने लगी, लो देख लो, हम थैले की बहनें हैं
उस शहीद की जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की खूबसूरत बहनें हैं। अपनी शहवत के गर्म गर्म लोहे से हमारा खुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दागदार करो, मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ हमें एक बार अपने मुंह पर थूक लेने दो। ये कहकर मेरा हमसफर खामोश हो गया, कुछ इस तरह की और नहीं बोलेगा। मैंने फौरन ही पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू डबडबाए। उनको गोली से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ ना कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो उसने कुली बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, आपने जो दास्तां सुनाई उसका अंजाम मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद बनाया है। एकदम चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। ये आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे की मजबूती में एक नाकाबिले बयान दर्द था। मेरे हमसफर ने अपने हलक की तलखी थूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हाँ उन हराम। वो गाली देते देते रुक गया। उन्होंने अपनी शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। ये कहकर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया।